Right. Student, any particular thing which you want me to cover in trigonometry? कोई particular topic जिसमें आप लोगों को doubts हैं? Anyone, please tell me. बोलो बच्चों, आप लोगों को असाइनमेंट मिल गई है जी? चलिए बच्चों, एक असाइनमेंट भेजी है, प्लीज माइक बंद कर दो अपना बेटा, नो नॉइज। राइट, so sir is distributing I think the assignment, so everyone has got the assignment, please yes, अगर असाइनमेंट मिल गई तो बेटा प्लीज रेज योर हैंड्स। एवरीवन हैज गॉट द असाइनमेंट। चलिए तो हम असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं बेटा। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन बेटा। इफ 3 cot a is equal to 4, if 3 cot a equal to 4 and a lies between 0 and 90 degree, a lies between 0 and 90 degree means so we have to find the value of secant a। बच्चों secant a की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे आपको बच्चे cot a की वैल्यू आ गई हमारे पास। cot a will be equal to 4/3। आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, दिस एंगल विल बी a, राइट, दिस इज a। cot is, cot क्या होता है बेटा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। तो ये बेस कितना हो जाएगा बेटा? 4k एंड दिस विल बी 3k, राइट। पाइथागोरस थ्योरम से आप हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लोगे। व्हाट विल बी हाइपोटेन्यूज? x square is equal to p square plus b square. So this will become 3 3 is 9k square plus 16k square, that is x square is equal to 25k square। h कितना आ गया बेटा? 5k, राइट। तो h की वैल्यू 5k आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड secant a। secant a is equal to बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है आपके पास बेटा? 4k, sorry, we have to find secant k, that is h upon secant k is h upon p, so that will be 5k over 4k, तो ये आ जाएगा 5/4। so option will be a option will be correct, right बच्चों। next we come to the question number 2। any doubt in this question? any doubt? yes, second question बेटा, 1 minus tan square 30 degree upon 1 plus tan square 30 degree। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? इट इज √3, राइट। tan 30 is √3, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। राइट, so this becomes tan 30 is 1, oh sorry what happened, tan 30 is 1 by right, tan 30 is there, so it is 1 by √3 whole square over plus yes friends, 1 by √3, 1 minus 1 by 3 over 1 plus, that is 1 over 4 by 3। इसको सिंपलीफाई करें बच्चों, by 2, it comes out to be
इन द फॉर्म ऑफ साइन और कॉस, तो क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों? और 60 डिग्री। Is it clear? Is this clear or not? बच्चों, is it clear? Yes, sir. If the height of a tower is equal to the length of its shadow, then the angle of elevation of the sun is. बेटा ध्यान से समझिए क्वेश्चन जरा देखते हैं। सपोज देखिए टावर है बेटा, हाइट आ रही है, राइट? इसकी जो शैडो विल बी दिस, ये टावर है बच्चे, शैडो विल बी ऑन द ग्राउंड पार्ट, दिस इज शैडो। Now this will be the angle of elevation of sun, theta. Now he says if the height of the tower is equal to the length, means height of tower is equal to length of the shadow. We have to find the angle of elevation. We have to find theta. So student, tan theta is equal to perpendicular upon and both of these are equal. It is given h equal to L. So this is h over h, that is 1. So tan theta is 1. तो थीटा कितना आ जाएगा बच्चों? tan theta is equal to angle of elevation is 45 degrees. Is it clear? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बड़ा सिंपल है जी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर है बेटा। ये सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ए प्लस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। टॉकिंग, no talking बच्चों, no talking. Now come to the fifth question बेटा। Fifth question is sin a is equal to 1 by 2. Find the value of secant a. Secant a हो जाएगी बेटा? बच्चों no talking. Sin a value बच्चे 1 by 2 है। You have to find secant a. So you can do this question in two ways. एक तो बेटा sin a 1 by 2 कब होता है? Sin a 1 by 2 is at sin 30 degree. A will be equal to, so you have to find secant a, यानी कि secant 30. What is the value of 30? What is the value of secant 30? Yes. What is the value of secant 30 degree बच्चों? secant 30 की वैल्यू कितनी होती है? Yes, who will tell me? बेटा cos का रेसिप्रोकल होता है, cos 30 कितना होता है? 2, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत है, ऑप्शन टाइपिंग में गलत है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं गिवन है। सो आंसर विल बी 2 by √3. इज इट ओके? इज इट क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. √3 cos square a आंसर बताइए जरा कितना आएगा? √3 cos square a प्लस √3 sin square a इक्वल टू सी ऑप्शन। यहाँ पे √3 कॉमन लिया तो देखिए sin square a प्लस cos square a और इसकी वैल्यू होती है 1, तो आंसर विल बी ठीक है जी।
अच्छा 7th क्वेश्चन है बेटा, ये कॉन्सेप्ट अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है जी, so please cut the 7th question, right? Please cut the 7th question. Now comes to the question number 8. If 2 sin square beta minus cos square beta. Beta to 2. Find the value of beta. Beta की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट? हाउ टू डू दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल डू, आज कोई बताएगा कैसे कर सकते हैं इसको? साइन की मल्टीप्लिकेशन कर दो कॉस में। हाँ जी, साइन को कन्वर्ट कर ले कॉस में जी, कर देते हैं बेटा। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फार्मूला लगाया है ना बेटा, साइन स्क्वायर बीटा विल बिकम 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो इसको ओपन किया ब्रैकेट को बेटा, इट बिकम्स 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर बीटा on the right side minus 2 cos square beta minus cos square beta कितना बन जाएगा बच्चे ये? बेटा क्या हुआ? व्हाई यू आर टॉकिंग? कोई डाउट है तो बताइए मुझे जरा। इक्वल टू 0, तो cos बीटा भी 0 आ गया बेटा। cos बीटा 0, cos 0 कब होता है बेटा? बीटा इज इक्वल टू, हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन बच्चों? बेटा क्वेश्चन आएगा तो घबराना जाना इस तरह का क्वेश्चन देख के, तो जस्ट हैव टू थिंक, ठीक है? तो एक साइन बीटा या कॉस बीटा को एलिमिनेट करना है, राइट? देन यू कैन डू इट। जैसे मैंने यहाँ पे साइन की जगह पे कॉस लेके आया है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन आल्सो सब्स्टिट्यूट दिस आल्सो, ठीक है? कॉस स्क्वायर बीटा की फॉर्म प्लेस पे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा भी लिख सकते हैं। बेटा प्लीज नो टॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन वेरी क्वेश्चन, देखिए बेटा, हेलो 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 हेलो, नो टॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 9, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, प्लीज लुक दिस क्वेश्चन केयरफुली। बेटा ये आ गया आपके पास एंगल बी 90 डिग्री and tan A, let's say this is A, this is B. Now what he says, tan A is 30 degree, tan root 3, A की वैल्यू बेटा √3 गिवन है, और tan √3 कब होता है? 60 डिग्री पे। तो व्हाट डज दिस मीन? A इक्वल टू tan 60 डिग्री। बच्चों हमारे पास हेलो प्लीज नो टॉकिंग बच्चों, एंगल ए आ गया 60 डिग्री। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, you have to find out the value of cos A cos C minus sin A sin C. You have to find the value of this. तो आपको यहाँ पे एंगल C भी चाहिए। If this angle is 60 degree, बच्चों ये एंगल कितना हो जाएगा? C angle C. Angle C is 30 degree. Angle C comes out to be 30 degree. Now put the values here. Cos A, cos 60 degree into cos 30 degree minus sin 60 degree, sin 30 degree. तो फाइंड आउट कीजिए बच्चों वैल्यू क्या आ रही है? व्हाट विल बी द वैल्यू?
और 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/2 वैल्यू √3/2 into 1/2. This becomes √3/4 minus √3/4, which comes out. और आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन इज देयर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बच्चों ये समझ में आया? एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, the angles of a triangle ABC are in the ratio 1:1:2. The largest angle B angle समझिए। Students, in the triangle ABC, angles are in the ratio 1:1:2. Angles की ratio given है बच्चों 1:1:2, and he says the biggest angle is angle C. The largest angle being the angle C, right? So let the common ratio x find out the angles. Sum of the angles will be 1. x and 2x, तो आपके पास एंगल आ गए 45 डिग्री एंड 90 डिग्री, और 90 का एंगल आपका सी है। मींस दिस right बच्चों, right? So we have find out the angle A and angle B 45 degree each. Now we have to find the value of secant A over cos B. What is secant A? Secant 45 degree over secant B. Secant 45 degree minus tan A. क्या प्रॉब्लम है? वाई यू आर टॉकिंग? बच्चे, आपके स्कूल ने आपकी क्लास अरेंज की है, ठीक है? 10 दिन के बाद आपके बोर्ड्स एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, और यू पीपल आर टॉकिंग सबसे मुश्किल चैप्टर कर रहे हैं हम मैथ की बुक का, एंड यू आर स्टिल नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड, रेडी टू लर्न। क्या प्रॉब्लम कहाँ आ रही है बच्चों? क्योंकि अगर आपको नहीं समझ आ रही है, यू कैन आस्क द क्वेश्चन, बट व्हाई यू आर टॉकिंग? इस टाइम पे तो आके ना, जो मतलब वर्स्ट टू वर्स्ट स्टूडेंट्स भी होते हैं वो भी सीरियस हो जाते हैं, बट यू पीपल आर बिहेविंग सो लाइटली, सो कैजुअली। लाइफ में आपको पहला जो सर्टिफिकेट मिलता है ना, वो 10th क्लास का मिलता है, और उसमें ही आप सीरियस नहीं हो। चलिए देखिए बच्चों, तो हमने वैल्यू निकाल ली एंगल ए और एंगल बी की, राइट? और इक्वेशन में पुट कर दिया। नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड 45 डिग्री? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड 45 डिग्री बच्चों? हाँ जी, वैल्यू कितनी होती है? सेकेंड 45 is also √2, tan 45 is 1, cot 45 is also 1। ये कैंसिल हो गए बच्चे, तो 1 minus 1 equal to 0। तो आंसर आ गया आपके पास 0। So that is option A is the correct answer. चलिए 11th क्वेश्चन, हेलो प्लीज 11th क्वेश्चन करके दिखाइए जरा, ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। प्लीज क्वेश्चन नंबर 11।
No talking. Okay, please do the question number 11. You have been given 4 tan beta is equal to 3. Then you have to find the value. तो आपके पास tan beta की वैल्यू आ गई 4. Now in the question you require sine, value of sine and cos, right बच्चों? So what you can do, you can find out the value of sine and cos theta. Let's say this angle is beta, this is 90, right? Now tan beta is 3/4 और tan किसके इक्वल होता है बेटा? Perpendicular upon base. So this will be 3k, this will be 4k and पाइथागोरस यूज करोगे तो हाइपोटेन्यूज 5k आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में करके दिखाया था. तो नाउ दिस इज 5k. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन? वैल्यू क्या होगी बच्चों? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन बीटा? That is 4/5. अब दोनों वैल्यू पुट कर दो आप. दोनों वैल्यू जो पुट करेंगे तो क्या होगा बेटा? 4 साइन बीटा माइनस 3 कॉस बीटा अपॉन 4 साइन बीटा प्लस 3 कॉस बीटा. ये सारी वैल्यूज पुट कर दो इसके अंदर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन बीटा? 3/5. and what is the value of cos beta? 4/5 divided by 4 into 3/5 plus 3 into 4/5. राइट बच्चों? तो ये ऊपर बन गया 12/5 माइनस 12/5, तो 0 हो गया न्यूमरेटर. अब न्यूमरेटर 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में कुछ भी वैल्यू आए तो दिस विल बी 0. तो आंसर क्या आ गया आपके पास स्टूडेंट्स? 0, राइट? सो हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है बच्चों? इज दिस क्लियर और नॉट जी? इज इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं जी. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 12. वेरी वेरी डिफरेंट क्वेश्चन बच्चों, वेरी डिफरेंट क्वेश्चन. नाउ सी द क्वेश्चन. इफ tan अल्फा प्लस cot अल्फा इज इक्वल टू 2. क्वेश्चन लीजिए बच्चे. tan अल्फा प्लस cot अल्फा is equal to 2, right? Then what is the value of tan 20 alpha plus cot 20 alpha? You have to find the value of this. Can anybody tell me how to do this question? Can anybody tell me how to do this question? कोई बताएगा बच्चों? Anyone? ठीक है बेटा, आपके पास tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा की वैल्यू गिवन है. अगर आप इसका स्क्वायर करो दोनों तरफ, tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा होल स्क्वायर, राइट? इसका भी स्क्वायर हो जाएगा जी. इज इट क्लियर? व्हाट विल दिस बिकम? tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot square alpha plus 2 tan alpha cot alpha is equal to
just a moment, Suraj. Just hold on for 1 minute.